نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج پارہ نمبر 7 کا خلاصہ پیش ہو رہا ہے۔ پارہ نمبر 7 کا نام ہے وَإِذَا سَمِعُوا۔ اس پارہ کے بالکل شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے تذکرہ فرمایا ہے حبشہ کے عیسائیوں کا۔ جب اسلام کی بالکل ابتدا تھی تو ابتدائی اسلام میں مسلمانوں کے ایک گروہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ حبشہ اس وقت عیسائیوں کا مرکز تھا اور وہاں نجاشی بادشاہ تھا جو عیسائی تھا۔ چنانچہ یہ لوگ وہاں پر گئے اور پیچھے سے مشرکین مکہ کا ایک گروہ بھی پہنچ گیا اور انہوں نے جا کر عیسائی بادشاہ سے کہا کہ یہ لوگ اللہ معاف فرمائے ہمارے باغی ہیں، ان کو ہمارے حوالے کیجئے، یہ لوگ اپنے اصل دین سے پھر چکے ہیں اور یہ آپ کے مذہب کو، آپ کے دین عیسائیت کو بھی غلط کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں ان کی جو رائے ہے وہ رائے بری ہے۔ یہ انہوں نے وہاں پر بات کی۔ نجاشی بادشاہ نے کہا کہ اچھا ہمیں بھی بتاؤ کہ آپ لوگ کیا کہتے ہو۔ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے اس وقت قرآن کریم کی آیت تلاوت کی جس میں حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کا ذکر ہے۔ اس وقت جو لوگ وہاں پر عیسائی موجود تھے ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور قرآن کریم کے الفاظ ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ کلام کو جب ان لوگوں نے سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ یہ آیت پہلی آیت ہے جس میں اس بات کا ذکر موجود ہے۔ تو ابتدا میں بالکل حبشہ کے عیسائیوں کا ذکر موجود ہے کہ قرآن کریم کو سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے کہ واقعتاً یہ تو بڑی برحق کتاب ہے۔ ہم بھی اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہم بھی قرآن کریم پڑھتے ہیں، قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی تفسیر پڑھتے ہیں، اس کے واقعات پڑھتے ہیں، تو کیا ہمیں قرآن کریم سنتے ہوئے پڑھتے ہوئے کیا ہمیں بھی رونا آیا ہے؟ کیا قرآن کریم نے ہمارے اوپر بھی کچھ اثر کیا اور ہم نے بھی قرآن کا اثر لیا ہے یا نہیں لیا؟ اس کو انسان بہت زیادہ سوچے، اس کو بہت زیادہ انسان کو سوچنا چاہیے۔ آیت نمبر 87 میں یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک ضابطہ بیان کیا کہ کوئی کھانے کی چیز ہے، پینے کی چیز ہے، استعمال کی چیز ہے، کوئی بھی چیز ہے، کسی چیز کو حلال کرنا یا کسی چیز کو حرام قرار دینا یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، یہ تم لوگوں کا کام نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری چیز کہ جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہو اس کو استعمال کرو، وہ تمہارے لیے پاکیزہ ہے، تمہارے لیے درست ہے۔ جس کو حرام قرار دیا ہو اس پر بالکل تم نے نہ عمل کرنا ہے اور نہ تم نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ حلال اور حرام کرنا یہ میرا حق ہے اور میرا منصب ہے، تمہارا منصب نہیں ہے۔ آیت نمبر 89 میں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان۔ قسموں کا ذکر ہے۔ یہاں 3 قسمیں ہم عرض کر رہے ہیں، اس کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ پہلی قسم یمین لغو کہتے ہیں، لغو اور بیکار۔ کوئی قسم اٹھاتا ہے لیکن اس قسم کو لغو کہتے ہیں، اس میں گناہ بھی نہیں ہے، کفارہ بھی نہیں ہے۔ کفارہ کیا ہے بات آگے آ رہی ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ بعض قسمیں ایسی ہیں کہ اگر آپ ان قسموں کو اٹھائیں تو آپ پر گناہ ہے، اور ساتھ ساتھ اگر آپ نے اس کو توڑ دیا تو آپ کے لیے کفارہ موجود ہے۔ کفارے کا معنی یہ ہے کہ آپ نے ان قسموں پر کچھ مالی جرمانہ ادا کرنا ہے، مالی جرمانہ آپ لوگوں نے ادا کرنا ہے۔ پہلی یمین لغو ہے۔ یمین لغو کس کو کہتے ہیں؟
ایک بندے کو کچھ نہیں پتا کہ پچھلے زمانے میں کیا ہوا. مثلا ایک بندہ ایسا ہے, آپ کا بھائی ہے, اس نے آنا تھا رات, آپ کی بات ہو گئی تھی بھائی صاحب آ رہے ہیں. صبح آپ کے ایک دوسرے بھائی نے کہا کہ فلاں بھائی صاحب آئے ہیں. آپ نے کہا وہ تو پکی بات ہے آ چکے ہیں, اللہ کی قسم آ چکے ہیں. اچھا, آپ نے قسم اٹھا لی, آپ کو یقین تھا کہ وہ آ چکا ہے کیونکہ آپ کی بات ہو چکی ہے. لیکن جب ان کے کمرے میں دیکھا گیا تو ان کے بیوی موجود ہیں. وہ کہہ رہے کہ نہیں, ان کی فلائٹ لیٹ ہو گئی تھی تو وہ آج پہنچیں گے. آپ نے قسم اٹھا کر بات کی ہے, لیکن آپ نے جو اٹھائی ہے قسم, یہ اس طرح اٹھائی ہے کہ آپ کو یقین تھا کہ یہ کام ہوا ہے. تو اس قسم کو لغو کہتے ہیں. اس میں گناہ بھی نہیں ہے اور کوئی مالی جرمانہ بھی نہیں ہے. نمبر 2, یمین غموس. یمین غموس جھوٹی قسم. آپ کو پتا ہے کہ فلاں شخص نے فلاں کے پیسے نہیں چرائے, آپ نے اللہ کی قسم اٹھا کر کہا کہ اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس نے زید کے پیسے چرائے ہیں. تو یہ ہے یمین غموس. اس میں سخت گناہ بھی ہے لیکن کفارہ نہیں ہے. توبہ کرے, استغفار کرے. عام طور پر لوگ جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں, یہ بالکل گناہ ہے. تیسری ہوتی یمین منعقدہ. یمین منعقدہ, پہلے سمجھ لیں آپ نے قسم اٹھائی کہ اللہ کی قسم آج میں صبح اٹھ کر روزہ رکھوں گا. لیکن صبح آپ اٹھے, آپ نے کی آنکھ نہیں کھلی یا کچھ مسئلہ ہوا, آپ نے پانی پی لیا یا کچھ اور کام کر لیا, پھر آپ کو یاد آیا ان کا, آپ نے کہا کہ آج میں نے روزہ رکھنا ہے. اگر آپ نے روزہ رکھ لیا, قسم اٹھائی تھی کہ روزہ رکھوں گا, روزہ رکھ لیا تو ٹھیک ہے. روزہ نہیں رکھا تو اس کا معنی آپ کی قسم ٹوٹ چکی ہے. جب قسم ٹوٹ جائے تو پھر آپ نے ایک تو گناہ کبیرہ ہے, اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں, توبہ اور استغفار کریں. اور دوسرا کہ آپ پر کچھ مالی جو ہے وہ لاگو کیا گیا ہے کہ آپ نے کچھ اللہ کے راستے میں دینا ہے. اس کو کفارہ کہتے ہیں. قسم ٹوٹ جائے تو قسم کا کفارہ یہ ہے کہ درمیانے درجے کا کھانا آپ 10 مسکینوں کو کھلا دیں, یہ بھی ٹھیک ہے. یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنا دیں, یہ بھی ٹھیک ہے. یا ایک غلام آزاد کریں. آج کل غلام کا رواج نہیں ہے. بس یا تو آج کے دن میں کھانا کھلا دیں یا کپڑے پہنا دیں, یا اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو آپ 3 دن لگاتار روزے رکھ لیں. یہ قسم کا کفارہ ہے. یہ بڑی اہم مسئلہ ہے. ہمارے بعض بھائی بعض بہنیں بات بات پر قسم اٹھاتے, اللہ کی قسم ایسا ہو, اللہ کی قسم. اس طرح کی قسم اٹھانا گناہ ہے, بلا وجہ اٹھائے. اور کوئی اس طرح کی یمین منعقدہ اٹھا لے کہ اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا, اللہ کی قسم میں اس سے نہیں بولوں گی, وہ دوسرے دن اس کو بول پڑی تو قسم ٹوٹ گئی, اب اس کا کفارہ دے گی. آگے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 90 میں 4 چیزوں کی بات کی ہے کہ یہ 4 چیزیں حرام ہیں. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. 4 چیزیں حرام ہیں. نمبر 1 شراب, نمبر 2 جوا, نمبر 3 بت, نمبر 3 جوئے کے تیر. جوئے کی تیر سے مراد تیروں پر کچھ چیز لکھ لیتے تھے. مثلا ان کے پاس 5 کلو چاول ہیں, 5 کلو چاول تقسیم کرنے کیسے کریں؟ ایسا کرتے ہیں, تیر اوپر رکھ لیتے ہیں, جس شخص کا تیر جون سا نکلا, جس طرح ہمارے ہاں ہے کہ آپ نے پرچیاں لگا لی, ایک کو لکھا کہ اس کو ملے گا 5 کلو میں سے 2 کلو, اس کو ملے گا 1 کلو, اس کو آدھا کلو, اس کو کچھ نہیں ملے گا. تو تقسیم اس طرح کرتے تھے, یہ بھی غلط ہے. پیسے جب آپ نے برابر برابر جمع کیے ہیں تو ان کی تقسیم برابر برابر ہو. اس طرح اٹکل پچو کے ساتھ پرچیاں ڈال کے اس وقت تیر کہلاتے تھے, تیر ڈال کر, یہ جائز نہیں ہے. تو یہ حرام ہے. شراب بھی حرام ہے. ان کو اللہ نے حرام کیوں فرمایا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے رجس من عمل الشیطان, یہ ایک شیطانی عمل ہے. شیطان چاہتا ہے کہ تم میں عداوت ڈالے, بغض ڈالے. اور ظاہری سی بات ہے, شراب پی کر انسان کا دماغ آؤٹ ہو جاتا ہے. جوا جب انسان دوسرے سے کھیلتا ہے تو جوا کھیلتے ہوئے اس کا اپنے دوست کے ساتھ, جس سے جوا کھیل رہا ہے, اس کے ساتھ محبت کا تعلق نہیں, نفرت کا تعلق پیدا ہوتا ہے. اسی طرح بت کے سامنے, بت نے کبھی دیا کبھی نہ دیا, کبھی بت کو خود بنانا ہے, تو یہ چیزیں حرام ہیں, انسانوں میں عداوت اور بغض ڈالتی ہیں. آیت نمبر 95 میں یہ حکم ہوا ہے, ایک بندہ نے احرام باندھا ہوا ہے,
احرام کی حالت میں، چاہے وہ حج کا احرام ہے چاہے عمرہ کا ہے، خشکی کا شکار کرنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ شکار ایسا ہے مثلا بلی شکار کر لی ہے، اس کا گوشت آپ نہیں کھاتے لیکن پھر بھی گناہ ہے۔ اگر کسی نے وہاں پر کوئی تھا حمام کبوتر تھا، اس کا شکار کر لیا، یہ بھی حرام ہے۔ اگر کسی نے جس طرح کا شکار کیا تو اس پر کفارہ لازم آتا ہے۔ حج اور عمرہ کی کتاب میں اس پر تفصیلی بحث موجود ہے۔ تو بہرحال اس کا ایک تذکرہ فرمایا۔ اسی ضمن میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا آیت نمبر 1 میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ دیکھیے بعض لوگ ایسے ہیں جن کو خام خواہ سوالات کرنے کا شوق ہوتا ہے، اور اس طرح کے الٹے سیدھے سوالات کرتے ہیں جس میں خود سوال کرنے والے کے لیے پھنسنا اور مشکل پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس آیت میں ارشاد فرمایا گیا کہ بے جا سوالات نہ کرو، کھود و کرید جس طرح لوگ شروع کر دیتے ہیں، ان چیزوں سے بالکل دوری رکھو، بالکل دور رکھو۔ یہاں ایک واقعہ عرض کرنا چاہتے ہیں ہم۔ ایک خاتون جا رہی تھی، اس نے کوئی ٹرے، جس طرح آج کل ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹرے میں کچھ رکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر ایک اس نے جس طرح ہوتا ہے نا کپڑا، کوئی رومال دیا ہوا ہے۔ جا رہی تھی تو کسی نے پوچھا کہ اس میں کیا ہے، یہ جو آپ لے جا رہی ہے اس میں کیا ہے؟ اس عورت نے بڑا پیارا جواب دیا، کہنے لگی کہ اگر میں نے بتانا ہوتا تو میں اس کو کپڑے سے ڈھانپتی نہیں۔ کپڑے سے ڈھانپنا ہی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ میں بتانا نہیں چاہتی کیا ہے۔ بلا وجہ سوالات، آپ کی تنخواہ کتنی ہے، آپ کی اولاد کیوں نہیں ہو رہی، آپ کی شادی کیوں نہیں ہو رہی، یہ اچھا میسج کس کا تھا، ابھی کال کس کی آئی؟ سوال یہ ہے کہ ان کا آپ کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ آپ کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں؟ اچھا یہ آپ کی ڈائری جو ہے، اس ڈائری میں کیا لکھا ہے، یہ ڈائری مجھے ذرا دکھائیں۔ یہ آپ کسی چیز کی سیکریٹ چیز ہے، پرسنل چیز ہے، موبائل ہے، اس کے ای میل ہے، اس کا لیپ ٹاپ۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی میں بلا وجہ کھود کرید سے انسان پرہیز کرے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، بڑی اہم بات ہے۔ بلا وجہ ہم ان چیزوں میں پڑھ کر پریشان ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ آگے مشرکانہ رسوم کی تردید کا بیان ہے۔ مشرک لوگ چند ایسی چیزیں تھیں کہ جن کو وہ خام خواہ حرام قرار دیتے، خام خواہ، یعنی یوں کہیے کہ کسی چیز کو حلال یا حرام کرنا یہ تو اللہ کا منصب ہے، اللہ کا جو ہے وہ معاملہ ہے، تمہارا تو معاملہ نہیں ہے، لیکن تم بلا وجہ ان کو حلال بھی کر رہے ہو، ان کو حرام بھی کر رہے ہو۔ تو فرمایا کہ ان چیزوں سے بالکل اپنے آپ کو دور رکھو اور بالکل اپنے آپ کو ایک طرف کرو۔ وہ لوگ کچھ چیزوں کو اپنی طرف سے حرام کرتے تھے، مثلا ایک کا نام بحیرہ۔ بحیرہ ایسا جانور جس کو شروع سے کہتے کہ اس کا دودھ ہم نہیں استعمال کرتے، بتوں کو دے دو اس کا دودھ، تو یہ کہتے تھے یہ ہم پر حرام ہے۔ نمبر 2 ایسا جانور سائبہ، جس کو کہتے ہیں بتوں کا ہو گیا۔ وسیلہ، اگر کوئی اونٹنی بچے جنتی اور وہ مؤنث اونٹنی جنتی تھی، مؤنث بچی پیدا کرتی، تو وہ بچوں کے نام پر، وہ بتوں کے نام پر۔ اور ایک اونٹ جس کو ہام لوگ کہتے تھے، ہام، اگر وہ خاص عدد میں کسی مادہ سے جفتی کر چکا ہو تو اسے بھی وہ کہتے بتوں کے نام پر ہو۔ یہ بلا وجہ کی بات ہے، بلا وجہ یہ حلال وہ حرام، یہ حلال وہ حرام۔ اللہ نے منع فرمایا کہ یہ تمہارے اعتقادات غلط ہیں، بالکل غلط ہیں۔ یہ تو شریعت کا حکم قرار دینا، یہ منصب اللہ کا ہے، یہ منصب تمہارا نہیں ہے۔ اگر آپ اس مقام کو، مرتبہ کو اپنے لیے قرار دے تو اس کا مطلب تم نے تو خود خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اس لیے اس قسم کے اعتقادات سے اپنے آپ کو بالکل محفوظ رکھو اور بالکل الگ ہو جاؤ۔ آج کے لیے ہمارے ہاں بھی یہی ہے، یہ چیز حرام ہو گئی، کیوں بھائی؟ یہ چیز حلال ہو گئی، حلال ہے حرام ہے، یہ رب کا منصب ہے، انسان اس سے بالکل دور رہے۔ آیت نمبر 109 میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے کہ دیکھیں میں تمہیں جو حکم دے رہا ہوں نا کہ حلال کرنا حرام کرنا یہ منصب تم اختیار نہ کرو، یہ پیغام میں نے انبیاء کے ذریعے تمہیں دیا، لہٰذا قیامت کے دن جہاں امتوں سے سوال ہوگا، خود انبیاء سے بھی سوال ہوگا کہ اے انبیاء میں نے اپنے پیغامات آپ کو دے کر بھیجا تھا تو لوگوں نے آپ کو کیا جواب دیا؟
अंबिया अलैहिस्सलाम कहेंगे या अल्लाह हम जितना अरसा इनमें रहे हमने आपका पैगाम दिया, लेकिन जब आपने हमें अपने पास बुला लिया तो अब गैब की बातों का इल्म आप ही को पता है, हम नहीं जानते। मतलब अंबिया भी बयान कर देंगे कि हमने हक बात इनकी तरफ पहुंचाई है। अंबिया का तज़किरा हुआ तो अंबिया के तज़किरा में एक नबी जो हमारे नबी से पहले गुजरे हैं, हजरत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम, उनका जिक्र मौजूद है। उनकी कौम ने एक बार मुतालबा किया कि हजरत आप अल्लाह से दुआ फरमाएं, अल्लाह ताला आसमान से दस्तरखान उतार दे। अल्लाह ताला ने आसमान से दस्तरखान उतार दिया। अल्लाह ने फरमाया अगर हमने दस्तरखान उतारा है, अगर कोई इस दस्तरखान को उतरने के बावजूद नहीं मानता, हक बात को कबूल नहीं करता, तो हम उस बंदे को सख्त से सख्त सजा देंगे। याद रखिए, एक बंदा मुतालबा करता है कि ये चीज मुझे दिखाएं अगर आप सच्चे हैं, नबी वो चीज दिखा देता है फिर भी ना माने, अब सजा सख्त होती है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र था तो ईसा अलैहिस्सलाम को बाज़ लोग अल्लाह का बेटा कहते हैं और माज़अल्लाह हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की बीवी कहते हैं। तो अल्लाह पाक ने इन आयात में इसका रद्द फरमा दिया कि इन लोगों की ये बात गलत है। खुद ईसा से पूछा जाए तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुद अपने आप को रब नहीं कहते, वो अपने आप को अल्लाह का बंदा कहते हैं, अपने आप को अल्लाह का बंदा कहते, खुदा का बेटा नहीं कहते। वइज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम अंत क़ुल्त लिन्नास इत्तख़िज़ूनी व उम्मी इलाहिन मिन दूनिल्लाह। क़यामत के दिन अल्लाह सबके सामने पूछेंगे कि तुम लोग हजरत ईसा को कहते थे कि ये अल्लाह का बेटा है, मुझे ये बात बताओ हजरत ईसा आप खुद बताएं कि क्या आपने कहा था इन लोगों को कि मेरी इबादत करो, मेरी वालिदा को अल्लाह के अलावा माबूद मानो? हजरत ईसा फरमाएंगे या अल्लाह आप इस जात से पाक हैं, मुझे क्या हक है कि मैं ऐसी बात कहूं? तो ईसा अलैहिस्सलाम खुद आखिर वक्त में इस बात से बिल्कुल वाज़े फरमा देंगे कि नहीं, ये इख्तियार नहीं है। तो लोगों को चाहिए कि कल जब ईसा अलैहिस्सलाम खुद बरी जिम्मा हो जाएंगे तो लोग आज इस तरह क्यों कहते हैं। आयत नंबर 118 में अल्लाह ताला की मुख्तारियत का बयान है। मुख्तारियत, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा हुआ तो क़यामत के दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से अर्ज करेंगे कि मैंने तो इन लोगों को आपकी इबादत का हुक्म दिया था, अगर इन्होंने सरकशी की है तो अल्लाह अगर आप आपके बंदे हैं ये लोग, अगर आप चाहें अजाब दें, अगर आप चाहें तो आप माफ कर दें। क्यों? इसलिए कि असल कुदरत खुदा में है। बस ये अंबिया की बुनियादी जो है दावत है। अल्लाह ताला के अंबिया की बुनियादी दावत यह है कि तमाम इख्तियारात खुदा के हैं। आज इख्तियारात हम अल्लाह माफ फरमाए बांटते हैं, ये इख्तियार फलां कबर वाले के पास है, ये फलां वलीउल्लाह के पास है, जबकि वो वलीउल्लाह वो और अल्लाह के वो नेक बंदे जो कब्र में जा चुके वो खुद कह चुके कि इख्तियारात का मालिक खुदा है। तो बिला वजह अल्लाह के इख्तियारात लोगों में बांटते रहना, इसी का नाम शिर्क है, जिसकी तरदीद के लिए अंबिया अलैहिस्सलाम आए हैं। सच्ची बात यही है कि अंबिया अलैहिस्सलाम औलिया इकराम और अल्लाह के नेक बंदे ये खुदा को इबादत करने वाले हैं, ये खुदा नहीं है। बस यही सच्ची बात थी। तो आयत नंबर 196 में अल्लाह ताला ने इसी सच्ची बात का जिक्र फरमाया। क़ाल अल्लाह हादा यौमु यनफ़उ सादिकीन सिद्क़ुहुम, यही वो दिन है कि जब आज के दिन सच्ची बात जिसने की थी दुनिया में, आज सच्ची बात ने उसको फायदा देना है। तो अल्लाह ताला हमें भी इसी सच पर कायम और दायम रखे कि इख्तियारात की मालिक जात खुदा ताला की है। सूरतुल अनआम, अनआम ये मवेशी को कहते हैं, मवेशी को कहते हैं जो चल फिर कर जिंदगी गुजारते हैं और खाते हैं। इस पूरी सूरत में अल्लाह तबारक व ताला ने मुख्तलिफ चीजों का जिक्र किया। अल्लाह ताला ने अपनी तौहीद का, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम की रिसालत का जिक्र किया। अच्छा, इसमें क़यामत का जिक्र भी है और अल्लाह ताला के कादिर होने पर मुख्तलिफ दलाइल भी हैं, और जो लोग अल्लाह के साथ शरीक करते हैं किसी को, उनकी तरदीद भी है। इस सूरत में चूंकि मवेशियों का जिक्र था तो इसलिए नाम भी रख लिया गया सूरतुल अनआम।
आयत नंबर 22 में मुशरिकीन से एक सवाल का तज़किरा मौजूद है कि क़यामत के दिन जब मुशरिकीन अल्लाह ताला के सामने पेश होंगे तो अल्लाह ताला एक अरसे तक एक उनसे बात नहीं करेंगे, बेहाल छोड़ देंगे उनको। एक अरसे के बाद उनसे पूछेंगे कि तुम मुझे बताओ कि जिन लोगों को तुम मेरा शरीक ठहराते थे, जिनके तुम गुण गाते थे, अपने माल अपने जान उन पर खर्च करते थे, बताओ तो सही वो किधर है। अब मुशरिकीन जो हैं बड़े परेशान होंगे, वो बड़े गौर के बाद जवाब देंगे, अल्लाह हम शिरक नहीं करते थे। यानी यूं समझिए कि शिरक दुनिया में करते हूं और क़यामत के दिन झूठ बोले कि अल्लाह हम शिरक नहीं करते थे। अल्लाह तबारक व तआला फिर उनके आज़ा को, पार्ट्स ऑफ बॉडी को हाथ गवाही देगा कि या अल्लाह ये झूठ बोलता है, जुबान शिरक हम करते थे। उनके पांव गवाही देंगे कि या अल्लाह ये हमें ले जाते थे बुतखाने की तरफ, कब्रों के सजदों की तरफ। उनका माथा गवाही देगा कि अल्लाह ये अल्लाह के आपके अलावा किसी और के सामने झुकते थे। तो ये बात वाजे रहे कि कोई शख्स, वो अल्लाह का दरबार होगा, हम किसी पर जुल्म करें, ज्यादती करें और हम ये कह दें कि क़यामत में हम कह दें कि हमने नहीं किया, नहीं। कुरान करीम सूरत यासीन में है, वतुकल्ली अल-यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम, आज के दिन आपकी जुबान पर मोहर लगी है। वतुकल्लिमुना अयदीहिम वतशहदु अर्जुलुहुम, आज के दिन आपकी जुबान बोलेगी, आपके हाथ गवाही देंगे, आपके पांव आपके खिलाफ हो जाएंगे। तो उस दिन से हम सबको डरना चाहिए कि उस दिन झूठ काम नहीं आएगा, सच्चाई होगी जो अल्लाह को पता है। इसलिए हम आज ही से अपने तमाम अमाल को दुरुस्त कर लें। उस वक्त जो लोग मुजरिम होंगे उनके अल्लाह अकबर क्या तमन्ना होगी। आयत नंबर 31 में इसका जिक्र मौजूद है। वो उस वक्त क्या कहेंगे, या हसरतना अला मा फर्रतना फीहा। देखिए, तीन बुनियादी अकीदे हैं इस्लाम के, अल्लाह ताला के बारे में, अल्लाह के नबियों के बारे में और आखरत के बारे में। आखरत के अकीदे को इस आयत नंबर 31 में बयान फरमाया है कि जब मुजरिम को जहन्नम के किनारे खड़ा किया जाएगा ना, तो वो जहन्नम की आग को, वहां की सख्ती को, वहां के अजाब को देखेगा तो वो क्या कहेगा, वो ये बात कहेगा कि अलामा फर्रतना फीहा, है ये क्या हो गया, हम तो दुनिया में रहकर हमने क्या कोताहियां की, काश हमें दुनिया में भेज दिया जाए, हम वहां जाएंगे तो वहां अब हम अल्लाह के हुक्मों को मानेंगे, उनको रद्द नहीं करेंगे, हम मोमिन बनेंगे, हम काफिर नहीं बनेंगे। अल्लाह फरमाते हैं कि ये लोग अब भी झूठ बोलते हैं, अब भी इनको दुनिया में भेज दिया जाए तो ये लोग फिर भी यही काम करेंगे जो इन्होंने पहले किया है। तो ये हम सब के लिए इबरत है कि कल रोने के बजाय हम अपने आप को आज ठीक कर लें, आज हम अपने आप को ठीक कर लें। उसके लिए चंद अहकामात हैं। अल्लाह ने कुछ हुक्म दिए और कुछ अंबिया का तज़किरा किया कि वो भी तो दुनिया में रह कर गए, उन्होंने किस तरह अपने आप को दुरुस्त किया। आयत नंबर 68 में एक हुक्म बयान किया कि फिर दुनिया में तैयारी कैसे करनी है। कि बाज मर्तबा ऐसा होता है कि आप एक महफिल में बैठे हैं, उस महफिल में बुरी बातें शुरू हो गई, उस महफिल में गंदी बातें शुरू हो गई, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ बातें शुरू हो गई हैं। अब इंसान को क्या चाहिए, फ़अरिज़ अन्हुम हत्ता यखूज़ू फी हदीसिन गैरी। आप एक महफिल में बैठे हैं, मसलन खवातीन है, शादी पर गई हैं, आपने रोका भी सही कि ढोलकी न बजाओ, ये बच्चियों को जो है ना वो रक्स कर रही है, डांस कर रही है, इनको रहने दो। उन्होंने कहा नहीं, आपने बैठना है तो बैठे, जाना है तो जाएं, हम जो है वो दोस्त अहबाब आए हुए हैं तो हम ये करेंगे। आप उस महफिल को छोड़ दें, उस गलत महफिल से बच जाएं जहां अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी होती है। हाँ, जब वो लोग बिल्कुल दुरुस्त हो जाए कि ठीक है हमने खत्म कर दिया, फिर आप जा सकते हैं। दुनिया में रहने का तरीका है। और इस पर यह कहा जा रहा है कि ऐसा मुश्किल काम नहीं है, बल्कि आप पिछली कौमों को देखें, पिछले अंबिया को देखें। बाप मुशरिक था और बेटा तौहीद वाला था, बाप बुत बनाता था और बेटा बुत तोड़ने वाला था। आयत नंबर 174 में 74 में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र है कि उनके वालिद गिरामी जो थे, आवाज नहीं आ रही,
آ رہی ہے استاد جی، آ رہی ہے جی جی آ رہی ہے کٹ کٹ کے آ رہی ہے سر بہت. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک آ رہی ہے صحیح ہے. استاد جی، آواز بالکل ٹھیک. جی بہتر بہتر. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر موجود ہے. آپ یہ نہ کہو کہ نہیں ہو سکتا، جس گھر میں والد صاحب بت بنا رہا ہے اسی گھر میں بیٹا توحید کا ڈنکا بجا رہا ہے، یہ ہو سکتا ہے. اس لیے اے امت کے لوگوں، تم یہ مت کہو کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، یہ بات ہو سکتی ہے. یہی وجہ ہے ابراہیم، لیکن اس کا یہ بات نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام والد صاحب سے لڑ پڑے ہوں. نہ، آپ نے اللہ سے بھی مانگا کہ اللہ والد صاحب ہیں، میری قوم ہے، بادشاہ ہے، یہ حق پر آ جائیں، اور اپنی دلیل کے ساتھ بات کی، ان کو اچھے طریقے سے دعوت دی ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ اگر آپ ایسے ماحول میں ہیں کہ جس ماحول میں برائیاں بہت ہیں، تو لڑیں نہیں، جھگڑے نہیں، مار کٹائی مت کریں، حکمت سے سمجھائیں، اللہ سے رجوع کرتے ہوئے سمجھائیں، اور دانائی کے ساتھ سمجھائیں، غلط لہجے کے ساتھ، ترش لہجے کے ساتھ، کھٹی زبان کے ساتھ اس سے اپنے آپ کو بچائیں. تو نبی کا ذکر کیا ہے کہ تم نے بھی اگر اس ماحول میں جینا ہے جس میں برائی ہے تو اس کو اس طرح کنٹرول کرو، اس طرح عمل کرو جس طرح انبیاء کرتے ہیں، جس طرح نبی کرتے ہیں. اور انبیاء کا جب ذکر آیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 83 میں 18 انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ. 18 انبیاء علیہ السلام کا ذکر پوری کے پورے قرآن کریم میں، اتنے انبیاء کا ایک جگہ پر ذکر کہیں نہیں ہے سوائے اس آیت مبارکہ میں. وہ انبیاء یہ ہیں: حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت نوح، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت الیاس، حضرت اسماعیل، حضرت یسع، حضرت یونس اور حضرت لوط علیہم السلام اجمعین. یہ انبیاء ہیں. فرمایا تم نے بھی دنیا میں آئے ہو، نبیوں کو دیکھو. انبیاء نے کتنی مشکلات کاٹی ہیں، خود بھی ٹھیک ہوئے اور ٹھیک تھے اس پر ایمان، اور اپنی قوم کو بھی راہ راست پر لانے کی کوشش کی. تو انبیاء کی ہدایات پر عمل کرو. نبیوں نے کیا ہدایت دی ہے؟ آیت نمبر 95 میں تذکرہ کیا جا رہا ہے. انبیاء نے اللہ کا تعارف کرایا، اللہ کی ذات کا تعارف کرایا، انسان سے اللہ تعالیٰ کو ملایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا تذکرہ کر کے انسان کو خدا کی طرف رجوع کرنے کی بات کی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا ان کے ذریعے رب کو پہچانا جائے، ان کی بات کی ہے. اس لیے انبیاء علیہ السلام کی نقش قدم پر چلنا چاہیے. آیت نمبر 103 میں ایک بات ذہن میں رکھ لی جائے، یہ تذکرہ موجود ہے کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی کی ذات ایسی ہے کہ دنیا میں رہ کر ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتے. ہماری آنکھ اس طاقت نہیں رکھتی کہ ہم اللہ کو دیکھ سکیں. ہاں، قیامت کے دن اللہ کا دیدار ہوگا، اور کیسا ہوگا یہ اللہ ہی جانتے ہیں. ہم یقین رکھتے ہیں. کیوں؟ قرآن کریم میں موجود ہے وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرۃ. قیامت کے دن کئی ایسے چہرے ہوں گے، کئی ایسے آنکھیں ہوں گی جو اپنے رب کا دیدار کریں گی. ہم سب دعا گو رہیں، اللہ ہمیں قیامت کے دن اپنا دیدار ضرور فرمانا، اپنے دیدار سے ہمیں اپنے دیدار سے محروم نہ فرمانا. دیدار کون کرے گا؟ جو دنیا میں من چاہی زندگی چھوڑے کر اللہ چاہی زندگی اختیار کرے گا. ایک بات یہاں ذہن میں رکھ لیں، دنیا میں ہماری آنکھ نہیں دیکھ سکتی. ہاں، آخرت میں اللہ تعالیٰ آنکھ میں وہ طاقت پیدا کر دیں گے کہ ہم اللہ کو دیکھ سکیں گے. اب دیکھنے کا یہ معنی نہیں کہ اللہ کی جسم ہوگا، نہیں. وہ کیسے ہوں گے اللہ؟ وہ قیامت کے دن ہی پتہ چلے گا. ہم اللہ کی اس بات پر ایمان رکھتے ہوئے اس معاملے کو خدا کے سپرد کرتے ہیں. دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکا، لیکن ہمارے پیغمبر علیہ السلام جب معراج پر گئے تھے تو آپ نے معراج پر عرش معلیٰ پر اللہ سے ملاقات کی اور آپ نے اللہ کا دیدار کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ چیز دنیا میں ہی دکھا دی جو اللہ آخرت میں باقی لوگوں کو دکھائیں گے. پارہ نمبر 8 بالکل ابتدا میں
वलौ अन्नना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइकता व कल्लमहुमुल मौता व हशरना अलैहिम कुल्ल शैइन क़ुबुला। आयत नंबर 111 में मुशरिक लोगों का जिक्र मौजूद है। देखिए हुजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह की बात करते, मुशरिक लोग जो हट धर्म होते थे वो ये कहते कि अच्छा अगर आप नबी है ना तो आसमान से फरिश्ते उतरते हुए हमें खुद दिखा दें। कोई कहता कि मेरा बाप दादा फौत हो चुका है, आप उनको कब्रों से उठाएं और वो हमारे साथ बात करें। हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया कि आपकी जिम्मेदारी ये है आप हक बात इनके सामने करें। बाकी जहां तक बात है मोजात की, तो ये फरमाइशी किस्म के अपनी पसंद और मर्जी के मोजात मांगते हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि अगर आप इनको इनके मनपसंद मोजात दिखा दें, फरिश्ते इनसे बात कर लें, इनके बड़े बाप दादा कब्रों से उठकर इनसे बात कर लें, लेकिन फिर भी ये लोग हट धर्म है, ये जिद और हट धर्मी की वजह से फिर भी ईमान नहीं लाएंगे। इसलिए आप इनकी इस गुफ्तगू पर परेशान मत हो। इससे एक बात ज़हन में रख लें कि बाज मर्तबा अल्लाह ने अपने नबी को मोज़े दिखाए भी हैं। मसलन हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी उंगली का इशारा किया, चांद दो टुकड़े हो गया। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खाना तकसीम किया, 2-4 बंदों का खाना कई अफराद को मुयस्सर हो गया। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने अपने लुआब मुबारक, अपनी थूक मुबारक पानी में डाली, पानी मीठा हो गया। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की आंख में डाली, आंख रोशन होगी, दर्द जाता रहा। सांप ने हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु की एड़ी पर काटा, हुजूर अलैहिस्सलाम ने लुआब दहन लगाया, वो बिल्कुल दुरुस्त हो गया। तो मोज़ात अल्लाह ताला ने अपने नबी को दिखाए हैं। उस्ताद मोहतरम हजरत मुतकल्लिम इस्लाम मौलाना मोहम्मद इलियास घुम्मन साहब दामत बरकातुहुम की किताब है सीरत खातमुन नबिय्यीन, उसमें ये पूरी तफसील मौजूद है। जब लोग हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात को यूं कर रहे हैं तो अल्लाह ने अपने नबी को तसल्ली दी है, और अल्लाह ने अपनी नबी के वास्ते से हमें तसल्ली दी है कि हम अगर ऐसे माहौल में हों कि हम हक बात करना चाहते हैं, लोग रुकावट डालते हैं, परेशान करते हैं, तो अल्लाह ने अपने नबी को तसल्ली दी, वो तसल्ली हमें भी है कि हम भी परेशान ना हुआ करें। बस हमारे जिम्मा है कि हम दयानतदारी के साथ हक बात पेश कर दें, बाकी लोग ना माने या माने वो उनकी मर्जी। तो अल्लाह ने आयत नंबर 112 में अपने नबी को तसल्ली दी है। आयत नंबर 122 में फिर ये बयान फरमाया कि कुफार और ईमान वालों की मिसाल कैसे है। काफिर बज़ाहिर तो वो हमें जिंदा नजर आ रहा है, लेकिन ईमान के बगैर वो मुर्दा है। मुसलमान अगरचे आपको परेशान नजर आ रहा हो, लेकिन ईमान के साथ वो जिंदा है। जिस तरह अंधेरे और रोशनी में फर्क है, इस तरह ईमान में और कुफ्र में फर्क है, मुसलमान में और काफिर में फर्क है। इसलिए इस बात को अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम समझें कि हम मुसलमान हैं। अपने इस्लाम पर हमें दिलो जान से फख्र भी हो और हमें दिलो जान से शुक्र भी हो। अगर अल्लाह माफ फरमाए हम भी काफिर होते या हम काफिरों वाले अकायद नजरियात अमाल करते तो बताएं दुनिया भी खराब और अल्लाह माफ फरमाए आखिरत भी खराब। आगे आयत नंबर 130 में महशर और क़यामत का जिक्र है। क़यामत का जिक्र है। अल्लाह ताला क़यामत में एक एक चीज पूछेंगे। या माशरल जिन्न वल इंस अलम यअतिकुम रुसुलुम मिनकुम यकुस्सून अलैकुम आयाती व युनज़िरूनकुम लिक़ाअ यौमिकुम हाज़ा। अल्लाह क़यामत के दिन पूछेंगे, ऐ इंसानों, ऐ जिन्नात, मुझे ये बताओ क्या तुम्हारे पास मेरे रसूल नहीं पहुंचे थे? क्या उन्होंने मेरी आयात तुम्हें नहीं सुनाई थी? क्या ये नहीं बताया था कि तुमने मरकर अल्लाह से मिलना है? अब जाहिरी बात है, अब ये इंसान परेशान होगा, कहेगा बिल्कुल कहा था, आपके अंबिया का पैगाम पहुंचा था, वाकईतन हम नाफरमान थे, हमने कुफ्र किया। तो इससे पता चला कि ये आखिरत का जो अल्लाह तबारक व तआला हिसाब लेंगे, हिसाब सख्त है, हिसाब सख्त है। उस्ताद मोहतरम हजरत मुतकल्लिम इस्लाम मौलाना मोहम्मद इलियास घुम्मन साहब दामत बरकातुहुम एक बड़ी अहम बात फरमाते हैं, मैं वो आपके सामने नकल कर देता हूं। उस्ताद जी फरमाते हैं कि कोई ये ना समझे कि हम दुनिया में जिस तरह रह रहे हैं हम वैसे ही रह रहे हैं, कोई पूछ गुछ नहीं है। फरमाते हैं क़यामत के दिन अल्लाह सिर्फ इतना पूछ लेना, लेमा फालता, ऐ शख्स तूने ये क्यों किया, बस इंसान के यूं समझे फिर तबाही शुरू हो गई।
कोशिश करें कि हमारी वजह से दीन का नुकसान ना हो, कोशिश करें हमारी वजह से खुदा हमसे नाराज ना हो, लोग हमसे हमारी वजह से नाराज ना हो। हमने लोगों को, अल्लाह को, सबको नाराज किया, किसी के हक की पासदारी नहीं की। इससे हमें बचना चाहिए। एक एक चीज का अल्लाह ने क़यामत के दिन हिसाब लेना, एक एक चीज का। यानी आपने फलां के बारे में ये बात की, आप साबित करें, नहीं करेंगे सजा है। आपने फलां का हक खाया, वापस करो, नहीं कर सकता है, सजा है। अंदाजा करें, एक बंदे की जिंदगी 40 साल, 50 साल, 60 साल, एक एक लम्हे का हिसाब देना है। तो अब बताएं हम कितनी मुश्किल में होंगे। इसलिए इस दुनिया में रहकर आखिरत की तैयारी जरूर कीजिए, जरूर कीजिए। एक दिन हमने कहीं ट्रिप पे जाना है, आउटिंग पे जाना है, तो उसकी बड़ी तैयारी करते हैं। तो क़यामत के दिन जब पूरी जिंदगी का हिसाब हमने देना है, तो अल्लाह फरमाएंगे ना, या माशरल जिन्न वल इंस, ए इंसानो ए जिन्नो। तो हमें मरने से पहले मरने की तैयारी करनी चाहिए, गलत सलत अकायद से अपने आप को महफूज रखना चाहिए। इसलिए आखिरत की तैयारी करने के लिए आयत नंबर 136 में अल्लाह ताला ने बुरे अकायद का जिक्र किया कि बुरे अकायद से बच जाओ, यह आखिरत की तैयारी है। मसलन कुछ लोग क्या करते थे, खेती और जानवरों में जो वो पैदा होते, कहते थे ये हिस्सा अल्लाह का, ये बंदों का है। फिर अल्लाह के हिस्से को गरीबों में, फुकरा में, बुतों में तकसीम कर देते और दूसरा हिस्सा वो खुद, यानी खुदा को कुछ भी ना देते। खुदा तो किसी चीज का मोहताज नहीं है ना। मतलब यह है कि हिस्सों को कुछ भी ना देते, तकसीम ऐसी करते कि जो बिला वजह। अल्लाह ने आपके माल में, आपके जानवरों में, आपकी खेती में जो तकसीम की है, उसी के मुताबिक अमल करें। मसलन अल्लाह ने माल दिया है आपको, माल का 40वां हिस्सा ज़कात देना लाजिम है। इंसान ज़कात नहीं देगा, खुदा की मार पड़ेगी। अल्लाह ने वुसअत दी है, कुर्बानी करें, कुर्बानी करना लाजिम है। अल्लाह तबारक व तआला ने वुसअत दी है, आपकी जो खेती है वो बहुत ज्यादा हुई है, खेती जब ज्यादा है आप उशर दें। तो इंसान ने अपने माल में से वो हक अदा करना है जो अल्लाह ने कहा है। ये नहीं कि कभी अदा कर दी, कभी न की, कभी इसको दी, कभी उसको दी, इस तरह भूचाल सा अपनी जिंदगी में मचाया है। ये तो काम मुशरिकीन का है। इसलिए अपनी तकसीम इंसान ना करे कि अपने हिस्से बांटता फिरे, बल्कि वही तकसीम करे। इसलिए हम बारहा ये बात अर्ज करते हैं, जिसके पास अल्लाह ने माल दिया है वो उलमा के पास जाए कि मेरे इस माल में किस किस का हिस्सा है, मुझ पर ज़कात कितनी है, सदका कितना दूंगा, मुझ पर कुर्बानी है या नहीं है, मेरे इतने बैंक बैलेंस है, मेरी इतने प्रॉपर्टी है, मेरा ये है। अपनी पूरी की पूरी जिंदगी को इंसान क्लियर करे। ये ना हो कि दूसरों का हक लेकर फिर इंसान मर जाए। और दूसरों का हक लेकर कैसे मरेगा, इसकी एक मिसाल भी आयत नंबर 137 में दी है। जिस तरह फरमाया कि जाहिलाना और मुशरिकाना रसूम है, उनमें से एक रस्म यह है, नंबर 1, बेटियों को कत्ल कर देते थे। बेटियां खाएंगी, बेटियां हिस्सा लेंगी, कोई हमारा दामाद बनेगा, कोई हमारी बेटी का खामद बनेगा, इस डर से वो लोग बेटियों को कत्ल करते। अल्लाह ने इसको जाहिलाना रस्म करार दिया। अल्लाह ने फरमाया कि अगर बेटियां ना होती, खातून दुनिया में ना होती, तो तुम पैदा कैसे होते, तुम्हारी औलाद कैसे चलती। अल्लाह ने ये जो निजाम बनाया है मर्द और खातून से एक नस्ल इंसानी का आगे चलना, तो तुम उनसे नफरत क्यों करते हो, ये गलत रस्म है। नंबर 2, कुछ चीजों को वो बुतों के नाम पर छोड़ देते कि ये फला साहिबा है, ये सांड है, ये बकरा है, ये छतरा है, ये बुतों के नाम पर छोड़ दिया, ये भी गलत है। बात अब ऐसा होता है कि जानवरों का दूध मर्दों के लिए हलाल समझते, औरतों के लिए हराम, ये भी गलत है। तो अर्ज करने का मतलब ये कि ये जाहिलाना रसूम से इंसान को बचना चाहिए। जो अल्लाह ने फरमाया उलमा से पूछें और उलमा से पूछ पूछ कर जिंदगी गुजारें। अल्लाह की कसम, इंसान दुनिया और आखिरत में कामयाबी की राह पर जाएगा। इसलिए अल्लाह ने तरदीद की है मुशरिकीन के इस अमल की कि अल्लाह ने जो हलाल करार दिया वो हलाल है, जो हराम करार दिया वो हराम है। तुम्हारे पास कोई हक हासिल नहीं है कि तुम हलाल और हराम करते चलो। इसलिए इस ज़िमन में अल्लाह ताला ने 8 किस्म के जानवरों का जिक्र फरमाया कि हम उनको हलाल कर रहे हैं, तो तुम लोग कौन हो कि उनको हराम करते हो, तुम कौन हो हराम करते हो।
जो अपनी तरफ से अल्लाह तबारक व तआला की हलाल करदा चीजों को हराम करेगा, ये जालिम भी है, ये दुनिया का सबसे झूठा शख्स है, सबसे झूठा शख्स है। इसलिए इस मामले में तरदीद करते हुए अल्लाह ने वर्स नंबर 145 में मुशरिकीन की एक बुरी आदत को बयान किया। मुशरिकों की बुरी आदत क्या थी? बुरी आदत ये थी कि मसलन वो कहते थे कि मुर्दार भी हलाल है, बहने वाला खून भी हलाल है, खिंजीर भी हलाल है, अल्लाह के नाम के अलावा किसी और नाम पर जानवर दिया वो भी हलाल है। अल्लाह ने फरमाया कि ये बात गलत है। अल्लाह जिसको हलाल करे उसको हलाल समझो, खुदा जिसको हराम करे उसको हराम समझो। तो अर्ज करने का मतलब आप खुद देख रहे हैं कि कुरान करीम की ये जो आयात का तसलसल चल रहा है, ये हमें भी सबक है कि हम अपनी जानिब से हलाल और हराम चीजों को न करें। हम खुदा ने जिसको हलाल ठहराया उसको हलाल समझें, खुदा ने हराम ठहराया हम हराम समझे, उसके करीब ना जाएं। ये बुरी और मुशरिकीन की आदत है। आयत नंबर 151 में अल्लाह ताला ने दीन का खुलासा जिक्र किया। फरमाया दीन का खुलासा ये है कि अवामिर और नवाही। अवामिर किसको कहते हैं? खुदा ने जो हुक्म दिया ये अवामिर है, इसको करो। खुदा ने जिन चीजों से रोका है उससे मना हो जाओ, ये नवाही है। मोमिन की शान ये है, पता चले कि अल्लाह का हुक्म है, उसको करने के लिए दौड़ पड़े, वो फिर पीछे मत हटे, वो ना देखे दुनिया क्या कह रही है। कई चीजें हैं इंसान को उनमें ख्याल रखना चाहिए जो यहां तज़किरा की गई हैं। अल्लाह ताला ने वो 10 चीजें, नंबर 1 अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक न ठहराना, नंबर 2 वालिदैन के साथ नेक सलूक करना, नंबर 3 अपनी औलाद को इस वजह से लोग कत्ल करते हैं कि रिस्क नहीं है, ये भी गलत, नंबर 4 हर किस्म की बेहयाई और बुरे काम से रुकना, नंबर 5 बेगुनाह आदमी को नाहक कत्ल ना करो, नंबर 6 यतीमों के माल में गलत तसर्रुफ मत करो। चलो कोई नहीं देख रहा, आज 2 किलो आटा वहां से हमने अपने आटे में डाल दिया, कोई नहीं देख रहा, उसकी अच्छी गाय हमने ले ली, बुरी उसको दे दी, ना करो। नाप तोल में कमी मत करो, इंसाफ से काम लो। नंबर 9 अल्लाह के साथ अहद को पूरा करो, और नंबर 10 सिरात मुस्तकीम, सीधे राह पर चलो, उल्टे राह इख्तियार मत करो। आयत नंबर 160 में अल्लाह ताला ने फिर अपने रहम को और अपने करम को बयान फरमाया। मन जा बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा। अल्लाह फरमाते हैं कि मेरा करम देखो, दुनिया में अगर कोई एक बंदा काम करे तो कोई उसको 10 गुना नहीं देता। आपके पास एक मजदूर ने काम किया, मजदूरी उसकी थी 1000 रुपए, आपने 1000 रुपए दे दी, अब जायद नहीं देते। लेकिन खुदा का करम देखें, मन जा बिल हसनते फलहु अशरु अमसालिहा, एक नेकी अगर करके खुदा के दरबार में आओगे, अल्लाह उस एक नेकी के बदले में रहम और करम यह फरमाता है कि आपके नामा आमाल में 10 नेकियां लिखी जाती हैं। वमन जा बिस्सय्यअति फला युजजा इल्ला मिसलहा, और अगर कोई शख्स गुनाह करता है तो अल्लाह का लुत्फ और करम यह है कि अल्लाह सिर्फ एक गुनाह लिखते हैं। कितनी बड़ी बात है, हम फिर भी इस पर अल्लाह का शुक्र अदा न करें, गुनाह करते रहें, नेकी न करें, ये कितनी महरूम होने की बात है। और आखिर में अल्लाह ताला ने आयत नंबर 162 में ये इरशाद फरमाया, इंसान को चाहिए कि अपनी तमाम तर चीजें खुदा ही के लिए कर दे। नमाज अल्लाह के लिए, कुर्बानी अल्लाह के लिए, जिंदगी अल्लाह के लिए, मौत अल्लाह के लिए। अपने जिस्म को इस्तेमाल करना है, दिल का इस्तेमाल, दिमाग का इस्तेमाल, हाथ पांव का इस्तेमाल, आंख का इस्तेमाल खुदा की इताअत के लिए। आपने वो हदीस सुनी होगी, हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया, जो बंदा अल्लाह के लिए मोहब्बत करे, अल्लाह के लिए नफरत करे, अल्लाह के लिए दे, अल्लाह के लिए न दे, यानी अल्लाह का मामला है बुरी चीज में नहीं देना, अल्लाह का मामला है ठीक चीज में देना है, खुदा का मामला है मोहब्बत की, और अगर अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है हमने उसको छोड़ दिया, हमारे ताल्लुकात अल्लाह की मोहब्बत की बेस पर हैं, फरमाते फ़क़द इस्तकमल ईमान, ये कामिल ईमान वाला बंदा है। तो सूरत के आखिर में इंसान को कमाल ईमान का तज़किरा फरमाया। सूरतुल आराफ, आराफ हद और दीवार को कहते हैं। इसमें वर्स नंबर 48 में अल्लाह ताला ने एक दीवार का जिक्र किया है। उस दीवार पर बैठकर यानी यूं समझिए एक तरफ जन्नत है एक तरफ जहन्नम है,
दरमियान में दीवार है, तो बाज लोग उस दीवार पर बैठेंगे जिनके नेकियां और बुराइयां बराबर होंगी। कुछ अरसा उनको दीवार पर बैठाया जाएगा, वो जन्नत भी देख रहे होंगे, जहन्नम भी, जन्नतियों के नियमतें भी, जहन्नमियों के अजाबात भी। फिर एक अरसा बाद उनको अल्लाह अपने करम और लुत्फ से जन्नत में दाखिल कर देंगे। तो चूंकि उस बात का तज़किरा इस सूरत में मौजूद है, इसलिए इस सूरत का नाम सूरतुल आराफ है। इसमें अल्लाह ताला ने अपनी तौहीद को, अपने अंबिया की रिसालत को और आखिरत को बयान फरमाया। शुरू में बिल्कुल ही पहले आयत नंबर 2 में अल्लाह ताला ने अपने नबी को तसल्ली दी है। बाज मर्तबा ऐसा होता था, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम लोगों को बहुत ज्यादा तबलीग करते, लोग न मानते तो हुजूर परेशान होते कि देखे मान क्यों नहीं रहे। अल्लाह ने फरमाया फला यकुन फी सद्रिका हरजुम मिन्हु लितुनज़िर बिही व ज़िक्रा लिलमुमिनीन। ऐ पैगंबर, आपने अच्छे तरीके से दीन पहुंचा दिया, अब ना माने तो फिर इनकी मर्जी है, आप परेशान ना हो, आप तंग दिल ना हो। और इनको वाजे हो जाना चाहिए, आयत नंबर 8 में है, क़यामत के दिन नेकियां तुलेंगी, क़यामत के दिन बुराइयां तुलेगी। हर शख्स का पलड़ा अलग अलग होगा। जो शख्स नेकियों के पलड़े को भारी कर देगा वो कामयाब है, और जो शख्स नेकियों के पलड़े से महरूम रहा वो नाकाम है। नाकामी कब आती है? जब हम अल्लाह की बात ना माने, खुदा के अहकामात को ना माने, वो नाकाम है। इसके लिए अल्लाह ने एक मिसाल दी है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम और इबलीस के किस्सा को आयत नंबर 11 में जिक्र फरमाया, वलकद खलकनाकुम सुम्मा सव्वरनाकुम सुम्मा कुलना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इबलीस। शुरू इरशाद फरमाया कि देखो, क़याम हमने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, फरिश्तों को कहा कि इनको सजदा करो, उन्होंने किया, शैतान ने सजदा न किया, तो वो क़यामत तक के लिए उस पर अल्लाह की लानत है। और जो शख्स उसको उसका कहना मानेगा तो वो भी उसी तरह होगा। शैतान शुरू से तुम्हारा दुश्मन है, इसलिए तुम उससे बच कर रहना। तो अल्लाह ने इब्तिदा में बता दिया कि देखो, बचने का तरीका यह है कि शैतान के कहे पर इंसान ना माने। शैतान तो चाहता है कि बरहना कर दे, तुम्हें बेआबरू कर दे। इसी ज़िमन में आयत नंबर 26 में फिर अल्लाह ने फरमाया, या बनी आदम कद अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा व लिबासुत तक़वा खैर। शुरू इससे पहले जो आयत है ना, उसमें तज़किरा है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कि शैतान ने वसवसा दिया कि आप ये फल खा लें। जब उन्होंने फल खाया तो उनको जन्नती लिबास उतरना पड़ा। तो अल्लाह ताला ने यह तज़किरा फरमाया कि लिबास इंसान की नेमत है, ज़ाहिरी लिबास भी नेमत है और तकवा का लिबास भी नेमत है। इंसान परहेजगार मुत्तकी हो, इंसान परहेजगार और मुत्तकी हो, गुनाह से दूर होने वाला हो, यह भी बेहतरीन लिबास है। आज हमारे लिबास, अल्लाह माफ फरमाए, मर्दों के लिबास हैं, वो भी अल्लाह के हुक्म के खिलाफ है। खवातीन के लिबास हैं, वो भी अल्लाह के हुक्म के खिलाफ है। नहीं पता कि ये लिबास पहने हुए है या लिबास से बेलिबास है। इसलिए लिबास का इंसान को बहुत ख्याल रखना चाहिए। घर में बच्ची है, लिबास का ख्याल आज से आप रखेंगे, कल लिबास दुरुस्त करेगी। घर में लड़का है, आज से आप लिबास सेट करेंगे, ये कल बड़ा होकर लिबास अपना दुरुस्त करेगा। तो हमें जाहिरी लिबास का भी एहतमाम करना चाहिए। आप हिजाब करें, सर पर दुपट्टा होना चाहिए, कपड़े मुकम्मल पहने, इंसान के बाजू, इंसान की आस्तीनें, ये चीजें बिल्कुल छुपी होनी चाहिए। मर्दों को भी चाहिए, मर्द भी अच्छा लिबास पहने, ऐसा लिबास जो तकवा वाला है, परहेजगारी वाला है, इसको प्यार दिया जाए। और आयत नंबर 31 में अल्लाह तबारक व तआला ने फिर ये एक अहम बात इरशाद फरमाई, या बनी आदम खुजू ज़ीनतकुम इंद कुल्ल मस्जिद। जब भी आप नमाज पढ़ें तो नमाज की हालत में आपने जीनत इख्तियार करनी है। जीनत का माना आपने अच्छे कपड़े पहनने हैं, सिर्फ कपड़े नहीं, साफ सुथरे खूबसूरत कपड़े पहने। बैतुल्लाह में पहले लोग तवाफ करते थे, अल्लाह माफ फरमाए, बरहना होकर कपड़े उतार कर तवाफ करते, तो अल्लाह फरमाती तो बेहयाई की बात कर रहे हैं। यही वजह है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु को भेजा अमीर हज बनाकर, उसके बाद हजरत अली को भेजा कि जाकर ऐलान कर दो कि आज के बाद कोई शख्स भी बैतुल्लाह का तवाफ बरहना नहीं करेगा। क्यों? इसलिए कि बेहयाई है।
लिबास ऐसा पहने जिससे आपका तकवा झलके, जिससे पता चले कि रब की नेमत है। यहां मैं एक बात अर्ज करना चाहूंगा, उस्ताद मोहतरम इरशाद फरमाया करते हैं, मसलन एक खातून है, 8 बजे उन्होंने जाना है एक शादी पर। सुबह उठकर वो कपड़े अपने तब्दील करके नमाज नहीं पढ़ेगी, आम कपड़ों में नमाज पढ़ेगी। जब वो 8 बज जाएंगे तो फिर अच्छे कपड़े पहनकर वो वहां फंक्शन में जाएगी। एक आदमी है, उसने 9 बजे ऑफिस जाना है, कपड़े अभी सेट नहीं करेगा, कपड़े आम में नमाज पढ़ेगा। उस्ताद जी फरमाते हैं कि जब हमने अल्लाह के सामने पेश होना है, कपड़े चेंज 1 घंटे बाद भी करने हैं, तो क्यों ना आप वही अच्छे कपड़े पहनकर मुसल्ले पर आए, सफ में आए, मस्जिद आए, अल्लाह के सामने आए, ताकि पता चले कि हमने अल्लाह तबारक व ताला के सामने सरब सुजूद होना है, तो अच्छे लिबास के साथ। तो फरमाया खुजू जीनतकुम इंद कुल्ल मस्जिद, नमाज के वक्त आपने जीनत इख्तियार करनी है, यानी आपने अच्छा लिबास इख्तियार करना है। और इसी से उलमा ने फरमाया कि नंगे सर नमाज ना पढ़ी जाए, नमाज में सर को ढांप कर इंसान पढ़े। खवातीन ने तो करना है, मर्द भी करे। आयत नंबर 42 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह ताला वही हुक्म इंसान को देते हैं जो इंसान के दस्तरस में हो। अल्लाह ताला इंसान पर भारी हुक्म नहीं देते। यही वजह है, अगर आप खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते ना, तो आप पर लाजिम नहीं है कि आप खड़े हो, आप बैठकर नमाज पढ़ें। बैठकर नहीं पढ़ सकते, आप टेक लगाकर पढ़ें। एक इंसान के पास पैसे नहीं है तो कभी नहीं कहा गया कि उस पर ज़कात फर्ज है। एक बंदे पर हज करने की ताकत नहीं है तो अल्लाह ने कभी नहीं कहा कि वो लाजमी हज करे। मालूम हुआ जितनी ताकत होती है अल्लाह उतना ही इंसान को जो है वो पेश फरमाते हैं, उस पर अमल की उसको हुक्म फरमाते हैं। आगे तज़किरा है असहाबे आराफ का, जिस तरह मैंने अर्ज किया कि जिनकी नेकियां और बुराइयां बराबर होगी वो उसी दीवार पर बैठेंगे, आखिर में अल्लाह ताला उनको जन्नत अता फरमाएंगे। आयत नंबर 54 में अल्लाह ताला ने अपने तौहीद पर कुछ दलाइल दिए हैं। ये बड़ी समझने की बात है, बड़ी समझने की बात है। देखिए, आप चीज को देखें तो पता चलता है कि इसका कोई खालिक है। अल्लाह ने फरमाया कि मेरी तौहीद पर दलाइल यह है कि आसमान और जमीन को देखो, अर्श की वसअत देखो, सूरज और चांद का निजाम देखो, दिन और रात का निजाम देखो, आलम का निजाम देखो। निजाम आलम ये बता रहा है कि इनको पैदा करने वाली जात मौजूद है। और आखिर में इस पारा के एंड में आयत नंबर 59 में अल्लाह ताला ने 5 अंबिया का जिक्र फरमाया। वो 5 अंबिया अलैहिस्सलाम हजरत नूह, हजरत हूद, हजरत सालेह, हजरत लूत और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम हैं। बताना यह मकसूद है कि ये वो अंबिया अलैहिस्सलाम हैं जिन्होंने अल्लाह की तौहीद की दावत दी कि रब ताला ऐसी जात हैं जो वहदहू ला शरीक है। नंबर 2 दूसरी है कि हमारे पैगंबर को भी तसल्ली दी है कि आप अपनी कौम को बता रहे हैं हक और कौम आपकी मुखालफत कर रही है तो आप परेशान ना हो। आपको तसल्ली होनी चाहिए कि पिछले अंबिया भी दुनिया में आए, लोगों को दावत दी और लोगों ने उनकी दावत को नहीं माना। और ये बात बिल्कुल वाज़ेह है। देखिए, अगर मसलन अल्लाह माफ फरमाए हमारे किसी भाई को कैंसर हो चुका हो, परेशान है, आप उसके सामने कहें कि फलां 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 को भी तो कैंसर हुआ था, उन्होंने भी इस पर वावेला नहीं किया, उसको अल्लाह की तरफ से समझा। अब जब लोग बीमार आदमी दूसरे लोगों के मामलात को देखता है तो तसल्ली हो जाती है कि इस मैदान में सिर्फ मैं नहीं हूं, ऐसे हो जाता है। तो पिछली कौमों का जिक्र किया, अंबिया का जिक्र किया, ताकि हमें तसल्ली हो कि वाकई ऐसा होता है। बुरा अमल जो करता है नाकाम होता है, अच्छा अमल करता है कामयाब होता है। तो आज के हमारे इस सबक में जो हमें अल्लाह तबारक व तआला ने अहकामात दी हैं उनमें से खुलासा मैं अर्ज कर देता हूं। नंबर 1 ये कि कुरान करीम जब हम पढ़ें, कुरान करीम का तर्जमा तफसीर, तो हमारा दिल उसकी तरफ माइल हो, हमारा दिल उसमें आंसू बहने चाहिए, ना बहे तो सूरत ऐसी बना लें। नंबर 2 कसम के अहकामात बयान किए कि बार बार कसम ना उठाई जाए। हाँ, अगर कोई कसम उठाता है और कसम तोड़ बैठता है तो उसका कफारा बयान फरमाए। नंबर 3 हलाल और हराम करना, ये अल्लाह ताला के मंशा है, हम नहीं है। नंबर 4 बेजा सवालात मत किए जाए। नंबर 5 हजरत ईसा अलैहिस्सलाम
और तमाम अंबिया ये अल्लाह ताला के बंदे हैं, ये खुदा नहीं है। नंबर 6, सच को हमेशा निजात की बात की गई है। नंबर 7, इंसान बुरे काम करेगा, क़यामत में पकड़ होगी। नंबर 8, अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा किया कि उनका दीन को हम लोग समझें। नंबर 9, क़यामत के दिन अल्लाह ताला का दीदार होगा। नंबर 10, मोमिन जिंदा होता है, काफिर मुर्दा है, मोमिन रोशनी है, कुफ्र ये अंधेरा है। नंबर 11, हमें मुशरिक लोगों के अकायद, उनकी रसूम और उनके रिवाज से बचना चाहिए। नंबर 12, कुरान और हदीस का खुलासा 2 चीजें हैं, या अल्लाह के हुक्म मानना, और नंबर 2 अल्लाह ताला ने जिनसे मना किया उनसे रुक जाना। नंबर 13वीं बात यह है कि क़यामत के दिन अल्लाह तराजू कायम करेंगे, हक और बातिल का मामला इंसाफ होगा। नंबर 14 कि हमें जाहिरी लिबास का भी ख्याल रखना चाहिए कि लिबास अच्छा हो, बातनी का भी ख्याल रखना चाहिए कि तकवा हो। नंबर 15, इंसान को अल्लाह तबारक व ताला उतनी ही चीज का मुकल्लफ ठहराते हैं जो उसमें ताकत है। नंबर 16, इंसान को अल्लाह ताला की पैदा करदा चीजों में देखना चाहिए ताकि अल्लाह ताला का उसको ध्यान नसीब हो और खुदा ताला की तौहीद पर दलील कायम हो। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमारे लिए कुरान करीम को समझना और उस पर अमल करना और आगे पहुंचाना आसान फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।